Do you know today what is आज क्या है पता है ना? आज क्या है? हाँ. हेलो. आज क्या है पता है ना? मकर संक्रांत. Just give us. I will wish you happy Makar Sankrant. Speak 2 minutes, 1 minute. Then we will directly jump to today's part of our, at least I think at least 2 questions we should not target that can come in exams. Afterwards, I will cover all the part which cannot, means we have to give a read to it just for the purpose of MCQ. Are you getting it? Are you clear with the approach what I am trying to use? I think this, yes, that's what I was looking for. Where is my? हाँ, ये नहीं था मुझे ओपन करना. But so just before we start the lecture, I want to wish you a happy Makar Sankrant. Do you know what we say in Marathi today? Tilgul घ्या and गोड गोड बोला. But in this world now you just I realize there is a need to change something about that word. Because the people now around us are always sweet speaking. हमेशा गोड ही बोलते हैं, गोड बोलून गळा कापतात. Actually, so I say the people should always say तिळगुळ घ्या आणि खरं खरं वागा. That is more important. You should be as real as you can instead of speaking sweeter. Right now? So always remember ki be real as it is. In professional life, sometimes you have to speak very much god. पता है ना, with client, हाँ, even if we are angry, can we get angry with the client? No. वो client से कभी भी we cannot get angry with clients. So in professional life, you can तिळगुळ घे गोड गोड बोल is right, huh? Definitely, yeah. We should be very much तिळगुळ घे गोड गोड बोल. But in real life, with our friends, with our parents, we should be always as real as we can. Never speak sweet. जर चांगलं बोल, चांगलं नाही, खरं खरं बोल. Just wish you happy Makar Sankrant again. I will ensure that you will get this by today and by end of the lecture. But then I go गोल गोल लाडू. Then did you know yesterday we had completed 2 questions majorly that can come in examination. Both the questions were differentiate between, right? Did you know they can be a good candidate? But I'm telling you what is my gut feeling. If it comes in exam, it will be audit and investigation, not audit and accounting, because audit and accounting is a BCom and 12th level question. So the probability of what will be asked is higher of auditing and investigation. The only point is there are 7 points. So you have to mug up all 7 points. You will get 7 on 7. Bang on. Are you getting it? Just now let me search some new question. Yes. मुझे मिल गई. और मिल गई क्वेश्चन. तुम्हें मिल गई? हाँ, मुझे कौन मिल गई पता है ना? मुझे कौन मिल गई? क्वेश्चन. Are you getting it? What I'm trying to tell? हाँ, मुझे कौन मिले? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट. एग्जाम के लिए LDR रेस टू 4. नहीं समझा? लास्ट डे रिवीजन रेस टू 4. अभी तक मैंने जब हमने 3 क्वेश्चंस की एग्जाम में ले, नैरो अप्रोच, ब्रॉड अप्रोच, 2 डिफरेंस, दिस वर क्वेश्चंस बट वे नॉट LDR. एग्जाम में आना की संभावना है पर इतनी नहीं है. ये तो प्रत्यक्ष हो सकता है, हो गया है, होने वाला है. क्यों पता है? कितने पॉइंट्स है? 9 points. Whenever the points exceed 7,
whenever points exceed 7, then it says I am candidate. क्या? Whenever points exceed 7, it says I am candidate. मुझे बोलो. First, integrity, objectivity, and independence. मुझे बोलो, see there are 3 words we have to understand. कोई भी ऑडिट हो, these are the basic. एसे 200 पता है ना सर? एसे 200 का नाम पता है आपको? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, और उसका नाम पता है क्या है? ओवरऑल, बोलो मेरे साथ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड conduct of audit as per standards on auditing. ये समझा क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू एसएस. ओ निकाल दो. ओया कासा. क्या? बोलो मेरे साथ. ओया कासा. वो पता है, वो एक पार्लियामेंट है नाइजीरिया बीजर है का, वो लड़की पता है ना, वो ऐसा वैसा. ओया कासा. बोलो मेरे साथ. ए बोलो. ओए बोलो थोड़ा. ओया. ये ओया कासा का है. ओया कासा. ये ओया कासा. बोलो ओया कासा. बोलो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of audit in accordance to standards on auditing. फिर से एक बार. ओया कासा. ओया, O for overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance to standards on auditing. क्यों नाम दे रहा हूं पता है? एमसीक्यू में बहुत बार वो क्या करते पता है? कभी पता है ना, अकाउंट में भी करते हैं, नाम देते हैं, नंबर देते हैं, नाम पूछते हैं. तो ये कभी आया तो आपको आना चाहिए. इधर तो दिया होगा बाद में लिस्ट पर, जस्ट आई एम टेलिंग. अभी देखो भाई, इधर गई वो क्वेश्चन. एसे 200 इशूड बाय आईसीएआई और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. लेस डाउन बेसिक प्रिंसिपल जो ऑडिटर को फॉलो करने पड़ेंगे. द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेनेवर ऑडिटिंग इज कैरिड आउट. पहले 3 वर्ड है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. ये 3 वर्ड्स है, इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं. 3 words are there, just first understand the meaning. ये देखो कंटेंट अंदर का बहुत कम लिखा है सर. आपने कम किया नहीं, मॉड्यूल में भी उतना ही थे. समझा सर? ज्यादा लिखने का नहीं, मॉड्यूल में नहीं, तो हम भी नहीं. बोलो 3 कौन से है? इंटीग्रिटी, straight objectivity and independence. Let me explain 3 terms in a layman language, then we will go to the content what is written. Right? What is integrity? Straightforward or honest. क्या? You tell them you cannot doubt my integrity of the work. मतलब कभी बोलते हैं ना, you cannot doubt my integrity. You cannot doubt my integrity. How much I love you. Hey, love the audit subject. समझा? You cannot doubt the integrity. मेरे सिद्धांतों के ऊपर तुम क्वेश्चन नहीं ले सकते. सिद्धांत, ये समझा ना? This is meaning of integrity. Auditor should be straightforward and honest. Integrity यानी क्या? Straightforward and honest. एकदम honest होना चाहिए. Objectivity, see, objectivity means unbiasedness. क्या? Your objective, क्या? ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी यू शुड शो अनबायस्डनेस इन ऑडिट कंटेक्स्ट. आई विल टेल. एंड थर्ड इज इंडिपेंडेंस. व्हाट इज इंडिपेंडेंस? माय ओपिनियन someone saying will not affect my decision. This is independence. So you are telling now, I'm independent girl, I'm independent by once I'm 18, I can take my own decisions. Independence यानी क्या?
You are not depend upon someone else. No one can direct you. What they want. Now in audit context, let me tell you, independence is the base. What I'm telling, independence is the base. Nothing can survive without independence. पक्का या कच्चा पक्का? एक अच्छा आम या पक्का आम? Nothing can be survived without independence. Auditor should be independent. क्यों पता है? For example, I am always giving an example. After a long duration of batch of 2.5 months, we will become very good friends. There will be a student-teacher relationship as well. We will be great friends. इसने CMA होने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू किया. क्या? बोलो मेरे साथ, क्या चालू किया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू किया. तो ये बाद में मेरे को पता है कि सर इज अ वेरी गुड ऑडिटर. ऑडिट पढ़ाते तो अच्छा थे, तो ऑडिट भी अच्छा करेंगे और पहचान भी है. रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा इधर उधर, तुम्हें पता है ना. हाँ सर मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 बार लिखने को बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे. कैन आई एक्सेप्ट हिज ऑडिट? कंपनीज एक्ट, इफ यू सी कंपनीज एक्ट डिसअलाउज रिलेटिव. पता ना वो डिस्क्वालिफिकेशन में रिलेटिव है, एम्प्लॉय है, फ्रेंड है क्या उसमें? फ्रेंड है क्या? स्टूडेंट ऐसा किधर दिया है क्या? तो इंडिपेंडेंस होगा क्या मैं इसका ऑडिट करूंगा? तो कंपनीज एक्ट में लाला, पता है ना कंपनीज आउट, पता है ना कंपनीज एक्ट का जो डिस्क्वालिफिकेशन का लिस्ट है वो बहुत नैरो है. But beyond that, there are many relationships, na, right? Can he? Am I disqualified to do his audit? No, as per Companies Act, no. Yes, from the company, but am I independent while doing his audit? No. Then I cannot accept. Sir, किसको जज करना है कि इंडिपेंडेंट हूं या नहीं? ऑडिटर को मन से लगना चाहिए. क्या? There are two concepts. Can I tell you into detail? There is independence of appearance. क्या? इधर मुझे है या नहीं पता है. इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. सर क्या बोला? अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड. पहले तो मुझे अंदर का आवाज लगना चाहिए, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं यानी माइंड, और बाकी थर्ड पार्टी को भी लगना चाहिए मैं इंडिपेंडेंट हूं. अपीयरेंस. ये पक्का समझा? आर यू गेटिंग इट? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट. There are two types of independence. मैंने बोल दिया एडिशनल, अपीयरेंस एंड माइंड. पक्का दोनों होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ऑडिट बहुत शिद्दत से करूंगा. क्या शिद्दत से करूंगा? मैंने बोला तू मेरा कोई स्टूडेंट था वो घर में क्लास में, अभी तो मेरा ठीक से ही करूंगा. ये बराबर है ना? तो बाय माइंड आई एम इंडिपेंडेंट, बट यू एज अ थर्ड पार्टी व्हाट यू विल से, ए सर आनी है, मिली भगत है, पता है ना. सो अपीयरेंस भी लगना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट. एग्जाम्पल तुम्हें ऑडिट में ओपिनियन पता है? ओपिनियन देना होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडिफाइड ओपिनियन. क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन यानी कुछ गलत ऑर्गेनाइजेशन में है तो मुझे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. मुझे बोलो कौन से टाइप के ओपिनियन है? अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. फिर से बोल रहा हूं, कौन से ओपिनियन? अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड यानी क्या? क्लीन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इतना कुछ नहीं है. समझा? मैंने इसको ऑडिट किया और मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, तो मेरे ऊपर कोई डाउट कर सकता है? मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर डाउट कर सकता है? इसलिए हर एक क्लाइंट को मॉडिफाइड ओपिनियन देने का नहीं. हाँ, आर यू गेटिंग इट? डन. आपको इंडिपेंडेंस समझा अच्छे से? एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी कुछ भी किया नहीं है. इंस्टीट्यूट हैज नॉट एक्सप्लेन इन टू डिटेल. कौन सा इंडिपेंडेंस होना चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस एंड माइंड. लिखा तो भी चलेगा आंसर. दूसरा ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव ने क्या? अनबायसनेस. आई शुड नॉट बी बायस्ड. कभी पता है ना रेसिस्ट, पता है? जस्ट नॉर्मल एग्जांपल देता हूं. रेसिस्ट पता है ना? व्हाट आर रेसिस्ट? हु इज रेसिस्ट? आर यू रेसिस्ट? क्यों रेसिस्ट क्या? नहीं पता ना? तुम्हें पहले पता था वो रेसिस्ट क्या? नहीं क्या?
तुम काले हो, what I'm doing is racism. You are white, this is also racism. It is a relative term, हाँ, पता है ना? There is high level of racism in USA, पता है ना? उधर blacks, around 40% of population is black. So what is Delhi? किधर था? Unbiasedness. हम अभी इधर आते हैं, वो समझ आया. अभी ऑडिट के कंटेक्स्ट में बोलते हैं. As a auditor, I should be unbiased. कभी भी बायसनेस होना नहीं चाहिए. अगर बायस होगा तो ओपिनियन गलत जाएगा. समझा? फॉर एग्जाम्पल योर वेरी क्लोज फ्रेंड इज देयर. समटाइम्स यू कैन बिकम बायस अबाउट हिम ना, अगर उसको ऑडिट कर रहे तो एज अ एंटिटी, एज अ ऑडिटर यू शुड ऑलवेज रिमेन अनबायस्ड. तीसरा, इंटीग्रिटी. Auditor should always be straightforward and honest. It's the basic human quality. Everyone should have. If one doesn't have such a quality, then he is in problem. एक बार अंदर का कंस्टेंट पढ़ दे, क्या लिखा है देखो. The auditor should be straightforward, honest and sincere, and should be free from any influence in his auditor. He should maintain impartiality यानी क्या? Unbiasedness. Independence should be free from any interest. For example, मैं कंपनी का फाइनेंशियल्स बनाता हूं, बराबर है, और मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं. Your independence is at stake. Why? Is there any independence? No. क्यों? There is a threat called self-review threat. क्या? बोलो मेरे साथ कौन सा थ्रेट आ रहा है? मैं ही फाइनेंशियल्स बना रहा हूं और मैं ही ऑडिट कर रहा हूं. किधर से गलती निकलेगा मेरे ही काम में? खुद को कभी थप्पड़ मारा है? खुद को कभी थप्पड़ मारना चाहिए. हाँ, मार सकते हैं. मारा है कहीं? मारा है तुम्हें? अभी बोल रहे थे हमारे. डन 100%. ये तीनों थिंग समझे? मुझे बोलो अभी ये ड्राफ्ट कैसे करने का. ऐसा लिखना है, Auditor should be straightforward, honest, unbiased, impartial, and he should not have any interest, direct or indirect, in the company for which of which it is doing the audit. ऐसा कुछ भी easy language में लिखो अंदर का. What you try to do is you try to mug up all 3 lines. Don't do it. Only thing is that you should pick up the keywords. Example: straightforward, honest, sincere, free from influence, impartial, independence. Are you getting it? ये 4-5 वर्ड पूरा एकदम easiest इंग्लिश में फ्रेम करो और डाल दो. You will get full marks. समझा? But if you write anything, be short, be precise. CMA CA Institute doesn't want you to write BCom level answers. It wants you to be very much precise. समझा? अभी आ रहा है ये पॉइंट, तो 6 पॉइंट मत लिखो इसके अंदर भी. दूसरा, समझा? कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी. व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? पता है ना, सीक्रेट रखना. तुमने कभी सीक्रेट रखा है क्या? कुछ नहीं, ओपन है ना सब. फॉर एग्जाम्पल, इसने उसके गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताया, तो क्या करेगा? तो ये क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी. समझा? अगर इसने किसी और को बताया तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. नाउ लेट इट बी अ एग्जाम. मैंने बोला हर बार मैं फालतू एग्जांपल दूंगा, पर वो बाजू में रखते हैं. अभी ऑडिटर देखो, ऑडिटर के पास बहुत सारा डाटा होता है. इट इज वेरी सेंसिटिव. अगर कॉम्पिटिटर को मिल रहा है ना, तो हमारा बिजनेस भी स्टेक पे लग सकता है. बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स. कॉस्टिंग पता है ना, कॉस्टिंग के बारे में भी ऑडिटर को पता चल जाता है. अगर किसी को और पता चला तो ही कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट. तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. सर फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे पूछा कि इंफॉर्मेशन बता दो ना थोड़ा. बताने की क्या? बोलो कंपनी के ऑडिटर हो तो पता है ना. फॉर एग्जांपल
आई एम द ऑडिटर ऑफ रिलायंस। तो सर कैसा चल रहा है कंपनी, थोड़ा अंदर वाला न्यूज दे दो ना। पता है ना देने का नहीं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर एग्जाम्पल, सर कैन आई डू अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? कब? सीनेरियो बोलो एक आइडियल, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी के बाहर वालों की कब बता सकते हो? एग्जाम्पल, नाफरा ने मुझे बुलाया, सेबी ने बुलाया, कोर्ट में मुझे बोलना पड़ा, बोलो क्या अंदर चल रहा है, तब मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज are beyond the principle of confidentiality. But unless and until that is there, you should be always following the principle of confidentiality. You should not disclose the client information to anybody without client's permission. दो ही सिनेरियो उन्होंने बोले, एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी पता है ना, ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, जस्ट बोल रहा हूं। Auditor should not disclose client's information to anybody without client's permission unless disclosure is required under रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो दो है, अगर लॉ बोल रहा है लीगली तुम्हें बताना पड़ रहा है तो बताओ, या तो कंपनी का परमिशन लेके बताओ। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर को पता है ना, ऑडिटर को कंपनी ने बोला ये जाके बताओ, तो बताने का कभी कभी स्टैंडर्ड ही बोलता है, पता है ना, कंपनी ने कुछ गलत किया ना तो डायरेक्टली बोम्बा मार के बता दो सब। अगर अगर अभी ये बोलता नहीं है स्टैंडर्ड पर, ऐसा स्टैंडर्ड पता है कौन सा स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऐसा अगर कुछ बोला होगा तो ही तुम ब्रीच कर सकते हो कौन से प्रिंसिपल का? कॉन्फिडेंशियलिटी। पक्का समझा? सिर्फ हेड पॉइंट्स नहीं, अंदर का भी समझा। नेक्स्ट जाओ, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बोलो once you become a chartered accountant, कौन सा अकाउंटेंट? कौन सा अकाउंटेंट? कौन सा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन सा अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और you become a CWA cost accountant, because these basic principles are for SA 200. These are applicable only to chartered accountant, not cost accountant. But these same principles are also applicable to cost auditor as well, right ना? Principles will not change. मुझे बोलो तुम CA या CWA होने के बाद ऑटोमेटिकली स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस आता है क्या? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? तुम CA हो गए, तुम्हारा वो ट्रेनिंग होता है ना कंपलसरी 18 मंथ की, वही 15 18, पहले वो 6 मंथ्स पहले करने का, अटेम्प्ट से पहले फाइनल, ऐसा कुछ है ना वो आपका, जो कुछ है वो बराबर है ना, जो कुछ है वो डमी तुम लोग करते हो, वही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मुझे जितना पता CMA स्टूडेंट का, वो कुछ सीरियसली करते हैं नहीं, जितना मुझे पता है उतना। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट जस्ट आई एम टेलिंग दे आर नॉट, इट इज नॉट बीइंग डन वेरी सीरियसली। तो वो 6 मंथ जो कुछ करते हो उसके बाद तुम पास हो गए। आर डू यू हैव स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस? आंसर इज डिपेंड्स। mere degree will not give you skills and competence. एक्सपीरियंस लगेगा, नॉलेज लगेगा, तो ही आपको स्किल्स और कॉम्पिटेंस आ सकता है। The auditor should be performed and the audit report should be prepared by a person who are adequately trained, experienced and competent. समझा? Are you getting it? यानी क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ डिग्री तुम्हें सब कुछ देती नहीं है। आपको फॉर एग्जाम्पल यू डू अ डमी आर्टिकल शीट, पता है कुछ समझेगा नहीं, अभी पता है कुछ समझेगा नहीं, बुक्स दूंगा ना तो ऑडिट हो गया। जस्ट इट वाज उसने CA इंटर क्वालिफाइड था, CA फाइनल दे रहा था, so I just said him, he said I have a good experience. I was working in a CA firm, so I said I will go. Okay, I assigned him a small audit. It was a small. It was his first audit, so I assigned him a small audit. What he did know, he said, "Sir, audit is complete." And then I said, "Okay." Then there was something called as I was not able to tally the opening capital. पता है ना ओपनिंग कैपिटल होता है। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने उसको बोला you did you check opening balance? He said no sir, सब चेक किया। Basic first step in an audit of a small entity is checking of opening balances. That was not done.
So what was there? He was lacking some competence. Hey, are you getting it? Though he had some experience. So experiences as competence आता है ऐसा. The work performed by others. The auditor carefully supervise the work performed by others such as subordinate, other auditor, experts and remains responsible for the work delegated by. ये देखो, मुझे बोलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, सर आपने नहीं, वो इतने उसका ऑडिट मैंने नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने किया है. शी वॉज द पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजर ओएनजीसी. पता है ना, पता है ना, ओएनजीसी पता है ना, गैस में है. उसका स्टॉक गैस का होता है बहुत सारा, वो पानी के नीचे होता है. तो अभी वो मेजर करना था. कैन माय फ्रेंड मेजर, गो डाउन एंड मेजर? टेल मी वन थिंग. बट शी वेंट. ऐसा ही अभी ओएनजीसी ने बोला चला घूमने के लिए जाते हैं, वैसे वो पानी के नीचे, पता है, सबमरीन से नीचे लेके जाते. क्या आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? समझा मैं क्या? कुछ को मे बी सबमरीन और कुछ ये पेन के नीचे जाते हैं, बराबर है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? बट कैन शी मेजर? नो. वी नीड अ टेक्निकल पर्सन. राइट ना? कैन यू मेजर द स्टॉक ऑफ गैस? यू कैन मेजर द स्टॉक ऑफ राइस. You can measure the stock of potatoes. You can measure stock of TVs. But you cannot measure the stock of gas. ज्यादा से ज्यादा क्या बता सकते हैं? उधर जो मीटर होगा ना, उसके ऊपर कितना है उतना ही, गाड़ी में जितना दिखता है वैसा ही, उतना तुम्हारा डोका उधर तक चलेगा. आर यू एक्सपर्ट ऑफ इट? नो. देयर आर सम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. पता है ना व्हाट इज मीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव. इसका अकाउंटिंग कैसे हुआ है, अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट लगेगा. कभी कभी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर से. क्या कभी कभी if I'm the auditor of holding, I have to coordinate even with the subsidiary auditors. So everything is required. Sir, if I delegate some work to someone else, does I am totally what we say relieved from my responsibility regarding that work? Definitely not. Definitely not. You cannot. You are not relieved. तूने ये उसको दिया, इसका मतलब ये नहीं that you are relieved from your responsibility. Done? पक्का समझा? नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन. जब जब डॉक्यूमेंटेशन आता है तब मुझे एसए 230 की याद आती है. क्या बोलो? एसए 230. एसए 230 स्पीक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. लिखो उधर, और जब भी इधर लिखोगे तो एज पर एसए 230 लिखने का. क्या? एज पर एसए 230. डन. अभी नीचे वाले मेजोरिटी पॉइंट्स है ना, ये सब व्हाट वी से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड है. 230 यू नो, तूने फॉर एग्जांपल तूने ऑडिट किया, उसकी गारंटी क्या है? तूने ठीक से किया है कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कल बोला था, पता है ना, कि अगर नाफरा ने मुझे बुलाया तो आई हैव टू प्रूव हिम दैट आई हैव नॉट एक्टेड निग्लिजेंटली. क्या? आई हैव टू प्रूव दैट आई हैव नॉट एक्टेड, आई हैव एक्टेड नहीं, आई हैव नॉट एक्टेड निग्लिजेंटली. तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? बोलेगा आपको देखो मेरे में कितना मासूम हूं. नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. डॉक्यूमेंटेशन. मुझे मेरे सर ने बोला था योर ऑडिट फाइल शुड स्पीक अबाउट इटसेल्फ. क्या? ऑडिट कैसे हुआ है, वो ऑडिट फाइल यानी वर्किंग पेपर्स देख के थर्ड पार्टी को भी समझना आना चाहिए. तो हमारा पता है ना डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, कभी कभी रियली डेंजरस. समझा? तो वर्किंग मुझे बोलो ये प्रॉपर्टी किसका है? वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिटर का. कैन यू शेयर विद क्लाइंट? यस. कैन क्लाइंट कंपेल हिम टू शेयर? नो. Working papers should be maintained to provide evidence that audit was performed and demonstrate audit has been constructed in adherence with the basic principles of audit. या basic standards on auditing. यानी क्या? It is a proof that हमने as per standards on auditing audit किया है. समझा? ये लिख पाओगे ना इतना समझने के बाद. नेक्स्ट इज प्लानिंग. एसए 300. देखो सर पक्का किसके क्या गारंटी? आपने बोला वही नाम है. हाँ, कितने सालों से पढ़ा रहा हूं, नाम नहीं भूलूंगा. एसए 300. आर यू गेटिंग इट? एसए 300 बोलता है, तुम्हें पता है ना, फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल. तो ऑडिट
हमें एक प्लान करना पड़ेगा, उसमें 3 है। ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्या ये बताए ना, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये 3, जब आप ऐसे 300 में जाओगे तब इन डिटेल ये 3 चीजें एक्सप्लेन की है, क्या 3, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो आपको कौन सा स्टाफ लगाना है, कितना लगाना है, एंटिटी, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक का ऑडिट आया, बराबर है ना, तो मैं कौन सा स्टाफ लगाऊंगा, जिन्होंने पहले बैंक ऑडिट किया है वही ना। तो मुझे क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छे से प्लान गाइस नहीं किया तो मुझे बोला क्या हो जाएगा, ऑडिट विल बी नॉट कंडक्टेड इन द प्रॉपर एंड इफिशिएंट वे। मुझे क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बराबर है ना, समझना पड़ेगा क्लाइंट कैसा है, पहले क्लाइंट एक्सेप्ट करने का या नहीं, क्लाइंट करने का एक्सेप्ट आ गया तो करने का, नहीं करने का, करने का। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास लेक्चर होने के बाद मुख्य भाई आया, मुख्य भाई मुकेश अंबानी, अरे भाई ऐसा ही वो, हम बचपन के थोड़ा दोस्त है पिछले जन्म में, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। मुकेश भाई ने बोला कि हिमांशु आई वांट यू टू अपॉइंट एज अ मेन ऑडिटर ऑफ रिलायंस। कोई ना बोल सकता है, मैंने पहला उसका पीएनएल खोला, मैंने बोला ही सेड 12 करोड़ इज फी, मैंने बोला चलेगा, तो बराबर है ना, ऑडिट आता है या नहीं आता वो इंपॉर्टेंट है, क्या कैन आई डू दैट ऑडिट, नो, नो आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, इतना बड़ा नहीं कर सकता, छोटा लिस्टेड क्लाइंट कर सकता हूँ, मेरे पास वो पूछेगा स्टाफ है क्या उतना कॉम्पिटेंट करने के लिए, तो आया कि लेने का, ऐसा नहीं होता। सो आई शुड नो कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, कैन आई डू इट और नॉट। दूसरा, ऑब्टेन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, पहले बिजनेस को समझो, पता है ना। दूसरा, टू डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। मैं इधर बोलता हूँ इसको, इसको ऑडिट में फेमसली क्या बोलते हैं, एनटीई, क्या एनटीईएपी, हमेशा आएगा, इसलिए नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। ये एनटीई ऑफ एपी है ना, 100 बार आएगा ऑडिट में। ऑडिट एविडेंस एस ए 500 सीरीज लिखो, क्योंकि पूरा 500 सीरीज मेजोरिटी ऑडिट एविडेंस के बारे में बोलता है, तो स्पेसिफिकली कुछ लिखने देते, वो स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो 500 लिख सकते हो, कि उस 500 का नाम ही क्या है पता है ना, ऑडिट एविडेंस। हमें हमें सही को लाना है, क्या हमें सही चाहिए, क्या कौन चाहिए, सही पाहिजे तुला, ए सही, समझा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सच्ची मैंने झूठ नहीं बोला, सही, अभी सही चाहिए, ऑडिट में सही होनी बहुत जरूरी है। तुला कुठली सही आठवली, हाँ, आर यू गेटिंग इट, कौन होना चाहिए, सही, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जो बोलो व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, इट इज अ प्रूफ। फॉर एग्जांपल परचेस का बिल, परचेस के लिए प्रूफ है, वैसे मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए, वो कैसे चाहिए, मुझे बोलो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, दो टर्म्स है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट डिटरमाइंस द क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, एंड अप्रोप्रिएट डिटरमाइन द क्वालिटी, समझा। तो वो सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी होना चाहिए। डन, नेक्स्ट पॉइंट में जाओ, कैन आई गो गाइज, कैन आई गो, नो आई कैन नॉट गो, रुको, हाँ लगे सर, बाय बाय स्टूडेंट, कौन का बाय बाय स्टूडेंट, हाँ, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। एक्चुअली इसके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली बोल सकता हूं मैं, ऐसे 315 इंटरनल कंट्रोल के लिए है, पर इधर लिखो मत, कोट मत करो, अभी तक मैंने किधर बोला, डायरेक्टली कोट भी कर सकते हो। एंड पहले देखो व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत बताया लास्ट लेक्चर में, घर में कुलू, पता है ना, मेकर चेकर पॉलिसी, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल यू गो इन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टैली,
दिस अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. अकाउंटिंग में परचेज पता है ना, बड़े कंपनी में क्या होता है पता है ना, टैली होता है क्या, यूज टैली होता है क्या. फॉर एग्जाम्पल यू गो इन बैंक्स, दे हैव फिनेकल फ्लेक्स क्यूब. क्या फ्लेक्स क्यूब, क्या है ये, कौन से नाम, जैसा हमारा टैली है ना वैसे बैंक के बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर मींस व्हाट वी से अकाउंटिंग के लिए तो स्पेशलाइज्ड हो. फॉर एग्जांपल यू गो इन बिग एंटिटी लाइक एक्चुअल, देयर इज सैप. क्या सुना होगा सैप के बारे में, अभी स्टूडेंट लोग सैप का कोर्स कर रहे हैं, पता है ना. सैप इज अ व्हाट वी से, इट इज लाइक अ सुटेबल फॉर अ लार्ज एंटिटीज. स्मॉल एंटिटीज के लिए कौन सा वाला पता है ना. डन. एंड लास्ट 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 में अकाउंटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा, क्या अकाउंटिंग है. फॉर एग्जांपल अगर उधर सैप है या फिनेकल है तो मुझे ऐसा बंदा होना चाहिए ना कि जो उसको कुछ समझे उसका. तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, जस्ट एक बताओ ऑडिट में कैसे किया मैंने. आई हैड अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ बैंक ऑडिट्स, बट द बैंक ऑडिट विच वाज अलॉटेड टू मी हैड एन फिनेकल लेवल. क्या था, फिनेकल. और मैंने अभी तक फिनेकल में ऑडिट किया नहीं था. हाँ, पर मुझे बैंक का नॉलेज था इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया, बट फिनेकल पता नहीं था. तो मैंने क्या किया पता है ना, सीखा. इतना इजी नहीं है क्योंकि 10-15 दिन में खत्म करना, अब सीख जाऊंगा, पर अभी का क्या. मैंने क्या किया, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को पकड़ा. क्या, ऑफ दैट बैंक और अदर बैंक विच इज यूजिंग फिनेकल. तो मैंने बोला जस्ट ज्वाइन माई टीम. अभी रिटायर्ड पीपल तो तैयारी होंगी, पता है ना वो रिटायर्ड पीपल, वो तो मैं था यार. हाँ आया तो उससे क्या बोला, वो इतना फास्ट काम कर रहा था, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए सर, ये ले लो. समझा. आर यू गेटिंग इट, व्हाई अकाउंटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि सब 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आउटपुट, तुम्हें सिर्फ आउटपुट देख रहे हो ना, सब किधर से आने वाला है, सब किधर से आने वाला है, सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम से आने वाला है. आर यू गेटिंग इट. इंटरनल कंट्रोल तो बात कर दी है मैंने, छोड़ दो. ये देखो अंडरस्टैंडिंग किसका करना है हमें, मेरा. बोलो मेरा अंडरस्टैंडिंग करके क्या होने वाला है अपनी लाइफ में. हाँ, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल हेल्प टू डिटरमाइन, फिर से NTEAP, नेचर टाइम एंड एक्सटेंड. कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वो देखना पड़ेगा. अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा ना मुझे. डन. ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग, इससे 700 and 705. ऐसे 700 and 705. लास्ट में अल्टीमेटली मेरा एजेंडा क्या है, कंक्लूड करना. तो ओपिनियन देना, बराबर है ना, ये बराबर है. एविडेंस, सर एविडेंस मिला कि हाँ एविडेंस मिल गया, अभी घर जाता हूँ. नहीं, एविडेंस के ऊपर मुझे कंक्लूजन पे रीच करना पड़ेगा. एंड कंक्लूजन देने के लिए ऑडिटर के पास क्या है पता है ना, रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, पता है ना. और ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है पता है, फॉर्म कंक्लूजन. अच्छा है तो 700 में ओपिनियन होगा. क्या कुछ गड़बड़ है, थोड़ा मोटा, थोड़ा है, मोटा है, बहुत है, पूरा झोली है, तो किधर जाएंगे 705. 700 स्पीक्स अबाउट अनमॉडिफाइड ओपिनियन. बोलो क्या, 700 स्पीक्स अबाउट अनमॉडिफाइड या क्लीन रिपोर्ट. क्या इसे 700 स्पीक्स अबाउट क्लीन और अनमॉडिफाइड एंड 705 स्पीक्स अबाउट मॉडिफाइड ओपिनियन. यानी क्या कुछ गड़बड़ है तो किधर जाना पड़ेगा, 705 में जाना पड़ेगा. डन. Done. On basis of conclusion drawn from auditor, the auditor should express an unqualified or qualified or adverse or disclaimer. अभी बोलता हूं, इधर लिखा ही है तो इन ब्रीफ बताता हूँ वो ओपिनियन क्या होता है. इन ब्रीफ दो टाइप्स ऑफ ओपिनियन इन डिटेल बताऊंगा हाँ टाइम आने पर. और अभी जर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग गाउटी लैंग्वेज में, क्या गाउटी ओपिनियन में दो टाइप्स, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड को क्या बोलते हैं, क्लीन. क्लीन भी बोलते हैं. ये किधर दिया, ऐसे
700, ये मॉडिफाइड किधर दिया है ऐसे 705, ये समझा? आर यू गेटिंग इट? और मॉडिफाइड में कितने टाइप्स है? फर्स्ट टाइप क्वालिफाइड, क्या क्वालिफाइड, दूसरा एडवर्स, तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डीओपी चलेगा ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इन शॉर्ट बोलूं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक लगा, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सब कुछ ठीक लगा, कुछ छोटा मोटा है, और अभी छोटा मोटा है तो क्या मैं ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा क्या उसके लिए? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, या आर यू गेटिंग इट? द कंसेप्ट कॉल्ड मटेरियलिटी। तो मुझे सब अच्छा लगा, तो मैं कौन सा रिपोर्ट इश्यू करूंगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। गड़बड़ है, मटेरियल भी है, बोलो गड़बड़, और मटेरियल भी है, पर एक आध दो आइटम में है पीएनएल और बैलेंस शीट के, क्या एक आध दो लाइन आइटम में, लाइन आइटम में नहीं समझे ना, एम्प्लॉय सैलरी में है, परचेस में गड़बड़ है, मटेरियल भी है, मटेरियल नहीं होती तो किधर जाता मैं? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। गड़बड़ है, मटेरियल है बट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट ओनली, तो कौन सा? क्वालिफाइड। गड़बड़ है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही झोल है, क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही झोल है, तो कौन सा? समझा? अभी समझने के लिए इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा आधा पौन घंटा, इतना आसान ये नहीं है। लास्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मुझे समझ ही नहीं आया, क्या समझ ही नहीं आया कि कौन सा ओपिनियन है? क्यों 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 क्यों? आई वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन सही, मुझे सही मिली नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा? टॉप। कौन मिली नहीं? सही, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मुझे मिला ही नहीं। मैंने उनको मांगा डेटर्स की इंफॉर्मेशन, बोले नहीं देंगे। मैंने बोला क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मैंने जो जो मांगा, परचेस का रजिस्टर, बोले नहीं देंगे, स्टॉक वेरीफाई नहीं चलेगा। मैंने बोला क्या देंगे? नहीं पीएनएल बैलेंस शीट दे देंगे, साइन करना है तो करो। ये वेदर आई एम एबल टू ऑब्टेन सही फॉर ए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए ना मुझे, वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है मुझे, सही नहीं मिल रही है, सही नहीं मिल रही है क्या? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मुझे सही नहीं मिल रही है तो मैं क्या दूंगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझा? जस्ट सर उसमें बहुत सारे टेक्निकल है, बट समझा ना थोड़ा थोड़ा, जितना उधर लिखा है उतना समझने के लिए। अभी कितने पॉइंट्स हुए? 9 पॉइंट्स, ठीक है। और एक आंसर होगा नहीं। अभी क्या करेंगे कि सब पॉइंट्स हम दिमाग में रखते हैं। पहला कौन सा है बोलो? क्या कौन सा वाला? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा कौन सा? कॉन्फिडेंशियलिटी। रुको रुको रुको, ये आओ, ए पे आओ, ये 3 ए वाले करो। ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम्स, बोलो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्ट। मुझे पहले ये पॉइंट करो, ये 5 पॉइंट बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। बोलो अंदर का मसाला अच्छा है, सिर्फ हेड पॉइंट किया नहीं, अंदर भी डिस्कस किया। बोलो क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। ये बोलो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, तो बराबर है क्या? क्या आईसीए है, बराबर आईसीए वाले सब पॉइंट्स। क्या ए? क्या? ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कंक्लूजन्स। कितने हुए? 5 पॉइंट्स हुए। अभी तक क्या हुआ पता है ना? आई सी, क्या सी ए वाले पॉइंट, और आई वाला देखो, आई वाला है नहीं पर मैंने बनाया है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। स्किल्स, आई पर फोकस है, स्किल्स ऐसा बोल, स्किल्स, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। अभी तक ये पहले 5 पॉइंट करते हैं। बोलो आईसी है यानी क्या? बराबर है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ए फॉर 3 आइटम्स, ए ऑडिट एविडेंस,
काय अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल, नीचे मत देखो, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग, समझा? और आई स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट बाकी है? 3। वह डब्ल्यू डी और पी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी। आईसीआई का क्या हुआ पता है? ये पता है ना, आईसीआई आईसीआई का पाइपलाइन खराब हुआ तो पीडब्ल्यूडी के पास गया, जाने दो किधर तो गया वो, ये समझा? ये जाने दो। पी फॉर प्लानिंग, डब्ल्यू फॉर वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, एंड डी फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पॉइंट्स अभी कर देते पूरा, अभी एक बोलो, आईसीएआई पीडब्ल्यूडी, याद रहेगा ये, बरोबर है? आई फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ए फॉर ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल है, ए वो हो गया, बराबर है? आई फॉर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, स्किल्स फॉर एंड कॉम्पिटेंस, पी फॉर प्लानिंग, डब्ल्यू फॉर क्या, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, एंड डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। चकाचक बैठ गए सभी पॉइंट। अंदर का भी मसाला अभी लिख सकते हो ना, जितना मैंने बताया वो भी लिखा तो भी चलेगा, मैंने टेक्निकली वैसा बताया। मैंने फॉर भाई घर वाले भी एग्जांपल दिए, फालतू भी दिए, अंदर की भी दिए, रट्टा मार के भी दिया। अभी और कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ, डन डन गाइस, डन गाइस। अभी अभी क्या करो पता है ना, अभी जस्ट 5 मिनट ले लो, और अभी जाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम है, एक्चुअली 11 तक ही था ना, पर just I'm taking 4 minutes more. I want you to go through every content. Sir, from where I should go, I always tell Bible पता है ना? I always tell module is a Bible, भगवत गीता। हाँ, मैं तो बोलेंगे कि है ना, ये पॉइंट मैंने कि मॉड्यूल मैंने वो पॉकेट से नहीं डाला है ये क्वेश्चन, ठीक है? कुछ ज्यादा कंटेंट लिखा होगा तो वो पढ़ लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन विल नॉट चेंज। कुछ अलग पॉइंट्स है क्या? डन। हाँ, दूसरा चीज, कुछ भी मिस करेंगे नहीं, तो वॉट एवर पार्ट इज रिमेनिंग ना, आई विल जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरलाइन जस्ट फॉर एमसीक्यू पर्पस, वी विल नॉट मूव अप। फीचर्स आ सकते हैं, देखेंगे, कर लेंगे, बट मुझे लगा फीचर्स कितने पॉइंट्स है, इधर देख, इधर मैंने भी फीचर्स लिखा ही है। प्रॉब्लम ये है मुझे फीचर्स, ये यही बोल रहे हैं ना, इधर जो नोट्स पे 6 पॉइंट्स है ना, प्रॉब्लम यही है, आ सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या करेगा, उनको 2 क्वेश्चन मर्ज करने पड़ेंगे, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड स्टेट द फीचर्स, बट दिस बिकम्स अ वेरी लेम क्वेश्चन। ये अगर बीकॉम लेवल का लगता है, हाँ, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, डम है क्वेश्चन। हाँ, आ गया है, 2-3 बार आ गया है पीवाईक्यू में। सच बोलूं, सब आके गया है, सब आके गया है, अभी कुछ बाकी नहीं है, एक बार तो सब कुछ आया ही है। हे काय मोबाईल वर मॉड्यूल किधर है तुम्हारा, भंगार वाला किधर? काय घरी काय पूजायला ठेवलंयस? मराठीत आहेस ना? मग घरी काय पूजायला ठेवलंयस? ए गाइस, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? डन। ए, आर यू ओके विथ माई स्पीड ना? इट इज नॉट टू फास्ट ना? इट इज टू स्लो टू कंप्लीट द सिलेबस। स्लो है, बढ़ाऊ थोड़ा सा? हाँ हाँ, नहीं रुको, इट्स ओके, बिकॉज सी ओनली थिंग इज दैट मेरा ऑडिट खत्म होने के बाद तुम्हारा भी ऑडिट खत्म होना चाहिए, वही अभी चल रहा है मेरा डिस्कशन। हाँ, वही तो प्लान कर रहा हूँ। हाँ, अकाउंट्स हर दिन, हर रोज लगातार। अरे बीकॉम, हाँ, इंटरनेशनल बीकॉम एग्जाम्स। ओके, okay, no worries, we will do appropriate action. Only thing is that there are already
Problem is how many lectures daily we can keep. If you are able to sit, then I am ready. I don't have much load. है लोड पर ठीक है, मैनेजेबल. कपिल सर जितना नहीं है मेरे पास. कपिल सर ऐसा इस क्लास से उधर सिर्फ देखने का उनको. अभी इधर, हाँ वो लैपटॉप ऐसे तैयार हो रहा है. हाँ इधर मुझे लग रहा है एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत क्लास में जाके सिखाना भी स्टार्ट करेंगे. चलो गाइस, लेट्स स्टॉप फॉर द डे. क्या